In this video, we will discuss the topic one sector new classical model of growth. This model is given by Solow and Mead, basically. First is the introduction. Neoclassical model of growth has been propounded by modern economists like Solow, Mead, Swan, etc. Robert Solow is an American economist whose work on the theory of economic growth culminated in the exogenous growth model named after him. He is currently Emeritus Institute Professor of Economics at the MIT, USA, where he has been a professor since 1949. He was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1987. Four of his PhD students, George Akerlof, Joseph Stiglitz, Peter Diamond, and William Nordhaus, later received Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in their own right. Indian economists Avinash Dikshit and Arjun Kumar Sengupta were the PhD students of Robert Solow. James Mead was a British economist and winner of the 1977 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences, jointly with the Swedish economist Bertil Ohlin, for their path-breaking contribution to the theory of international trade and international capital movements. Trevor Swan was an Australian economist. He is best known for his work on the Solow-Swan growth model. There were two independent pioneers of neoclassical growth theory, Robert Solow and Trevor Swan. Solow published a contribution to the theory of economic growth in the February issue of the Quarterly Journal of Economics in 1956, and Trevor Swan published Economic Growth and Capital Accumulation in the Economic Record in December 1956. तो ये थ्री इकोनॉमिस्ट हैं मेनली, सोलो, मीड एंड स्वैन, जिन्होंने न्यू क्लासिकल मॉडल ऑफ ग्रोथ दिया है. It is called new classical model because it is based on the neoclassical assumption that substitution between factors of production, for example between labor and capital, is possible. In other words, capital-labor ratio may change, and due to this, economy can maintain steady state of growth. तो ये इनका मेन पॉइंट है. इनके अकॉर्डिंग जो कैपिटल लेबर रेशो है वो चेंज हो सकती है. इट मीन्स कैपिटल लेबर में आपस में सब्सटीट्यूशन है. हम लेबर को कम करके कैपिटल को ज़्यादा लगा सकते हैं, कैपिटल को कम करके लेबर को ज़्यादा लगा सकते हैं. तो जैसे ही टेक्निकल प्रोग्रेस होगा तो कैपिटल लेबर रेशो चेंज हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज जो इकॉनमी है इट कैन मेंटेन स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ, ये उसको मेंटेन कर सकते हैं. ऑन द कंट्ररी, हैरिड डॉमर हैं, रॉय हैरिड was an English economist. He is best known for writing The Life of John Maynard Keynes in 1951 and for the development of the Harrod-Dommer model. Evsey Dommer was a Russian-American economist famous as developer of the Harrod-Dommer model. हैरड-डॉमर मॉडल की अलग से वीडियो बनी हुई है हमारी, वो आप देख सकते हैं. हैरड-डॉमर मॉडल assumed that substitution between factors is not possible. तो हैरड-डॉमर ने ये अज्यूम किया था कि कैपिटल लेबर रेशो जो है इट विल रिमेन फिक्स्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमी कैन नॉट मेंटेन स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ. तो हैरड के जो बाद का मॉडल है
तो उनके मॉडल में इम्प्रूवमेंट करके ये आया है न्यू क्लासिकल, क्योंकि हैरेड डॉमर के अकॉर्डिंग कैपिटल लेबर रेशो में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हमें ये मेंटेन करना मुश्किल है स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ, जिसको वो नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहते हैं। बट न्यू क्लासिकल के अकॉर्डिंग ये कैपिटल लेबर रेशो चेंज होने की वजह से हम स्टेडी स्टेट ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं। Assumptions of new classical model of growth. Capital and labor are two factors of production. Suppose substitution of capital labor is possible, किए जा सकते हैं. Production is under constant returns to scale. Suppose constant return to scale का मतलब होता है कि जैसे हम जितने परसेंट इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं उतने परसेंट ही आउटपुट इंक्रीज होता है, उसको कहते हैं constant returns to scale. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की, वन साइड वी आर टेकिंग इनपुट्स, अदर साइड वी आर टेकिंग आउटपुट. तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसे. ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 45 डिग्री पे भी हो सकती है, 45 से कम भी हो सकती है, 45 से ज़्यादा भी हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन कि हमें इनपुट आउटपुट हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कितने इनपुट्स लगाकर कितना आउटपुट मिलता है उस हिसाब से. बट स्ट्रेट लाइन ही होगी. और अगर ये स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस और दिस, तो स्ट्रेट लाइन मीन्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, सपोज वी आर एम्प्लॉइंग इनपुट्स I1, so we are getting output Q1. This is suppose A point. So when we double the inputs from I1 to I2, output doubles from Q1 to Q2. तो जितने परसेंट हमने इनपुट्स को बढ़ाया, सपोज हमने इनपुट्स को बढ़ाया 50%, तो आउटपुट भी 50% बढ़ गया. दिस इज द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी, जैसे हैरेड डॉमर ने एज्यूम किया था. सपोज फुल एम्प्लॉयमेंट इकॉनमी है, डेवलप्ड इकॉनमी है, जिसमें स्टेडी स्टेट ग्रोथ है, हमने इसको मेंटेन करना है. परफेक्ट कंपटीशन है इकॉनमी में सपोज, एंड सपोज प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल, ये चेंज हो सकती हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स increase in production. Simple है. Economic growth has two characteristics. First, gradual and continuous. एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ग्रेजुअल है, कॉन्टिन्यूस है, चलती रहती है ऐसे. जस्ट एज अ फॉरेस्ट एक्सपैंड्स एंड डेवलप्स ग्रेजुअली, जैसे कोई भी, इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, जैसे कोई भी फॉरेस्ट है वो एक दिन में नहीं बनता, धीरे धीरे डेवलप होता है. नॉट सडनली. लाइकवाइज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसीड्स स्लोली एंड कॉन्टिन्यूसली टुवर्ड डेवलपमेंट. तो धीरे धीरे हम टॉप लेवल पर पहुंचते हैं. दिस इज हार्मोनियस एंड क्यूमुलेटिव. देयर इज हार्मनी इन इकोनॉमिक ग्रोथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मनी? बिकॉज इट बेनिफिट्स ऑल क्लासेस, लेबरर्स, कैपिटलिस्ट, लैंडलॉर्ड्स. तो सभी को इसका शेयर मिलता है ग्रोथ में से, इसलिए इसको हम हार्मोनियस कहते हैं. मतलब जो
क्लास में डिफरेंस है, इनइक्वालिटी है, वो जनरेट नहीं होती। ग्रोथ सभी के लिए बेनिफिशियल होती है, लेबर के लिए भी, कैपिटलिस्ट के लिए भी, एंटरप्रेन्योर के लिए भी, लैंडलॉर्ड के लिए भी, सभी के लिए, फॉर ऑल द फैक्टर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्यूमुलेटिव, बढ़ती रहती है ग्रोथ, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस अमंग इंडस्ट्रीज। अब ए इंडस्ट्रीज बी पे डिपेंड है, बी इंडस्ट्री सी पे डिपेंड है, सी इंडस्ट्री ए पे डिपेंड है, तो आपस में एक दूसरे की चीज़ वो यूज़ करते हैं, इसलिए जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू आगे आगे चलती रहती है। एक इंडस्ट्री ग्रो करती है तो वो दूसरी को साथ में ग्रो कर देती है। Development of one sector like this, development of one sector encourages the development of the other sector. Thus industries enjoy external economies. तो यही एक्सटर्नल इकॉनमी होती हैं। एक्सटर्नल इकॉनमी होता है जब कोई इंडस्ट्री किसी और इंडस्ट्री के डेवलप होने से डेवलप हो। जैसे ये ए इंडस्ट्री है, ये बी इंडस्ट्री है। अगर सपोज बी इंडस्ट्री डेवलप हो गई, उस बी इंडस्ट्री के डेवलप होने से ए इंडस्ट्री भी डेवलप हो गई, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इकॉनमी फॉर ए। जैसे सपोज ये टायर की इंडस्ट्री है, ये सपोज साइकिल की इंडस्ट्री है। तो अगर साइकिल की इंडस्ट्री डेवलप हो गई, साइकिल ज़्यादा बिकने स्टार्ट हो गए, तो इनके जो टायर्स हैं वो भी बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो टायर्स के लिए ये एक्सटर्नल इकॉनमी है। कॉन्सिक्वेंटली कॉस्ट्स फॉल, इट मीन्स कॉस्ट कम हो जाएगी। डिवीजन ऑफ लेबर एक्सटेंड्स, क्योंकि जब इकॉनमी राइज करेगी, इंडस्ट्री राइज करेगी, अगर इंडस्ट्री राइज कर रही है इट मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट हो रहे हैं, तो इट मीन्स उनका जो आउटपुट है बढ़िया हो रहा है। इसका मतलब कंपैरेटिवली कॉस्ट उनको कम आ रही है, आउटपुट अच्छा हो रहा है। इट मीन्स लेबर की डिवीज़न अच्छी है प्रोडक्शन प्रोसेस में, एंड टेक्निकल नॉलेज भी जो है वो बढ़ रही है। तभी हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्री हर एंगल से ग्रो कर रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन दिस चैप्टर। मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। According to this theory, capital accumulation is the main determinant of economic growth. Capital accumulation necessitates savings, क्योंकि जैसे ही कैपिटल accumulation होता है वो सेविंग की वजह से ही होगा। सेविंग अगर है तो सेविंग डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम दोनों ही जब ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ सेविंग इज आल्सो हाई, सेविंग भी ज़्यादा होगी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि सेविंग जो है इट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। केन्स ने कहा था कि जो सेविंग है इट डिपेंड्स अपॉन इनकम। तो अगर हम दोनों फैक्टर ही मान लें कि अगर आप लोगों के पास इनकम भी ज़्यादा हो और बैंक भी अच्छा इंटरेस्ट दे, तो ज़रूर हम सेविंग करके बैंक में डिपॉजिट करेंगे। इट मीन्स सेविंग विल राइज विद राइज इन interest and rise in income, saving will rise. Of these two factors, rate of interest is more important for the accumulation of capital. तो rate of interest ज़्यादा important है capital accumulation के लिए, क्योंकि फिर interest के बेस पे investment भी होना है। capital accumulation के लिए interest important है। Now, what is the process of capital accumulation in neoclassical growth model? According to neoclassical growth theory, because of the substitution of capital for labor, लेबर की जगह हम कैपिटल लगा सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर बीइंग कांस्टेंट, स्टॉक ऑफ कैपिटल कैन ग्रो। तो कैपिटल की जगह, लेबर की जगह जब हम कैपिटल लगाएंगे तो अपने आप ही जो कैपिटल का स्टॉक है वो बढ़ेगा। इट रिजल्ट्स इन कैपिटल डीपनिंग, तो उससे कैपिटल डीपनिंग होगी।
Capital deepening means that every worker will be given new and better machines. They will be trained and efforts will be made to increase their skill. तो वर्कर को जब हम ज़्यादा बढ़िया तरीके की ज़्यादा अच्छी कैपिटल देंगे, इसी को हम कैपिटल में टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कहेंगे। तो वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है, स्टॉक ऑफ कैपिटल, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल जब पर वर्कर बढ़ गया तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग व्हेन देयर इज टेक्निकल प्रोग्रेस, जब टेक्निकल प्रोग्रेस होगा तब इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स बढ़ जाएगी, क्योंकि टेक्निकल प्रोग्रेस हुआ, इन्वेस्टमेंट के चांस बढ़ गए, तो कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जैसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग तो इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ जाएगी। तो प्रोसेस ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन की जो और ज़्यादा हो जाएगी तेज, क्योंकि सेविंग बढ़ गई लोगों की और पैसा आ गया। बट दिस राइज इन इन्वेस्टमेंट विद, जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट में राइज होगा, प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स आल्सो राइज। तो कैपिटल गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल गुड्स की भी डिमांड बढ़ी। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मशीनें खरीदेंगे, तो मशीनें जो हम और खरीदेंगे तो उनकी भी प्राइस बढ़ेगी एंड दस रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट इज मेड इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज में हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि मशीनों की जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो हम और मशीनें पैदा करेंगे। एज दीज कैपिटल गुड्स प्रोजेक्ट्स कंप्लीट एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स, तो जैसे ही जो हम कैपिटल गुड्स में मशीनें लगाई, बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो कैपिटल गुड्स पैदा होंगी। तो जैसे ही कैपिटल गुड्स पैदा होंगी, प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स फॉल, कैपिटल गुड्स की प्राइस कम हो जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, तो सेविंग भी कम हो जाएगी एंड द प्रोसेस ऑफ कैपिटल अकोमुलेशन कम्स टू स्टॉप। तो कैपिटल अकोमुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा और इकॉनमी जो है वो स्टेशनरी स्टेट में पहुंच जाएगी। तो ये इनकी ग्रोथ प्रोसेस है, जिसको हमने ये 8 स्टेप्स में दिया है। स्टेप वाइज अगर हम इसको रीड करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉज अफेक्ट पता चलता है। लेट वी रिपीट इट। तो पहले क्या होगा, टेक्निकल प्रोग्रेस होगी, उससे इन्वेस्टमेंट को चांस मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम कैपिटल गुड्स की डिमांड करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नई मशीनें लगाना, फैक्ट्री का साइज बढ़ाना, नया प्रोडक्शन करना, तो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी। कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, बैंक में हम पैसे की डिमांड करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग सेविंग भी बढ़ाएंगे, सेविंग बढ़ाएंगे तो बैंक में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो और ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो उससे कैपिटल गुड्स की प्राइस भी बढ़ेगी। कैपिटल गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। तो कैपिटल गुड्स की प्राइस बढ़ने से जो कैपिटल गुड्स बनाने वाले हैं वो कैपिटल गुड्स बनाने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वहाँ पे जो कैपिटल गुड्स बनने स्टार्ट होंगी तो मार्केट में कैपिटल गुड्स आएंगी, तो कैपिटल गुड्स की प्राइस कम हो जाएगी, तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, सेविंग भी कम हो जाएगी, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो इकॉनमी अपने फुल स्टेज पे हाईएस्ट ग्रोथ पे पहुंच जाएगी और वहाँ पे फिर वो मेंटेन रहेगी। तो ये इनकी ग्रोथ प्रोसेस है न्यू क्लासिकल की। इसको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये डायग्राम हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये एमईसी के बेस पे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईसी का रिलेशन है इन्वेस्टमेंट का। ये कैपिटल स्टॉक है, जैसे ही एमईसी शिफ्ट होती है राइट साइड पे टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से, तो कैपिटल स्टॉक बढ़ता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज डायग्राम्स। इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
One side we are taking capital stock, other side we are taking rate of interest and marginal efficiency of capital, MEC. This is suppose MEC, M1, suppose, and rate of interest is suppose this one, R1. Suppose R1 is the rate of interest and this is the equilibrium point. Now initially, suppose rate of interest is at this point, R3. At this point, the equilibrium is at E1 and कैपिटल स्टॉक इज K1. अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है R3. एज पर MEC वी आर इन्वेस्टिंग OK1 कैपिटल, सो कैपिटल स्टॉक इज OK1. जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, सपोज R3 टू R2, कैपिटल स्टॉक हमारा बढ़ गया फ्रॉम K1 टू K2. दिस इज सपोज E2 पॉइंट. और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हुआ फ्रॉम R2 टू R1, कैपिटल स्टॉक और बढ़ गया फ्रॉम K2 टू K3. दिस इज सपोज E3 पॉइंट. व्हाट आर वी शोइंग, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट R3 से कम होकर R2 होगा, R1 होगा, जो कैपिटल स्टॉक है वो बढ़ेगा फ्रॉम K1 टू K2 टू K3. तो अगर हम इसमें टेक्निकल प्रोग्रेस ऐड करें तो उसकी हम डायग्राम अलग भी बना सकते हैं, इसी डायग्राम में भी शो कर सकते हैं. तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग सपोज हम इसको अलग से ड्रॉ करें. Again, this is capital K. This is rate of interest and MEC. The rate of interest is same, R1. इसी को हम आगे लेके जा रहे हैं. And this is our first MEC, that is M1, and in equilibrium this is our point E3 and this is the capital stock K3. तो हमने यही पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ किया है, सेम R1 E3 K3, R1 E3 K3. this is M1 M1. Now with technical progress, suppose जो MEC है, टेक्निकल प्रोग्रेस होने की वजह से, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से MEC शिफ्ट्स राइटवर्ड्स फ्रॉम M1 टू M2. MEC जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो राइट साइड पर शिफ्ट हो गई. तो जैसे ही MEC शिफ्ट हुई राइट साइड पर, जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का, स्टेशनरी स्टेट का, वो भी शिफ्ट हो गया फ्रॉम E3 टू E4. तो कैपिटल स्टॉक हमारा बढ़ गया फ्रॉम K3 टू K4. और अगर हम और ज़्यादा प्रोग्रेस करें तो और ज़्यादा अगर MEC सपोज शिफ्ट हो जाए, M2 से M3 हो जाए, तो
और प्रोग्रेस होने की वजह से एमईसी और शिफ्ट हो गई, लेबर की प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई और बढ़िया कैपिटल आ गई, तो इससे और ज़्यादा हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ गया K4 से K5। तो यही हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसको यहाँ भी शो कर सकते थे कि अगर हम एमईसी शिफ्ट करें तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम कैपिटल स्टॉक को बढ़ाएंगे। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। दिस इज द process of capital accumulation in this model. Now equations of the Solow and Mead, ये जो दो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने जो ग्रोथ इक्वेशंस दी हैं वो क्या हैं वो हम स्टडी करेंगे अब। फर्स्ट इज द सोलो इक्वेशन। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस के साथ हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, गिवन बाय सोलो एंड मीड। तो सोलो की इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर मीड की इक्वेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द इक्वेशन गिवन बाय सोलो। According to Solow, the basic identity between saving and investment is, जो बेसिक आइडेंटिटी है वो ये है, K डैश इक्वल्स टू स्मॉल एस इंटू वाई। K dash is the net investment, that is the rate of increase in capital stock. Small s is the proportion of income that is saved, and y is income. तो हम इनकम का कितने प्रपोर्शन सेव कर रहे हैं, दैट इज एस, और यू कैन से दिस इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हम कितनी इनकम में से हिस्सा सेव करते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पर इसको लिखें, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, ये है K डैश इक्वल्स टू एस वाई। तो K डैश हमारा क्या हुआ, K डैश तो इन्होंने हमें बताया कि जितना हमने कैपिटल में चेंज किया। सपोज करो 2000 ईयर में हमारी कैपिटल थी 100, 2005 में हमने कैपिटल कर दी 120। तो इसमें चेंज कितनी आई कैपिटल स्टॉक में, ये चेंज आई 20। 120 माइनस 100, दिस इज 20। So this is the investment, or you can say net investment. K dash is the net investment or rate of increase in the capital stock. कितना capital stock increase हुआ, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। Small s is the average propensity to save और marginal propensity to save। हम अपनी इनकम में कितने अमाउंट सेव करते हैं, ये तो था K। स्मॉल एस जैसे सपोज हो 10%, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारी इनकम है 100 तो हम सेविंग करेंगे 10, क्योंकि हमारी सेविंग क्या होगी, सेविंग होगी 10% ऑफ 100। ये हमारी सेविंग होगी। सेविंग क्या होगी, स्मॉल एस इंटू वाई। Small s is 10%, that is 10 upon 100 into इनकम हमारी है 100। तो इसमें से आएगी हमारी APS आएगी 10। और अगर हमारी इनकम हो 200 तो 10% इसका बनेगा 20, क्योंकि अगर हम 200 के हिसाब से कैलकुलेट करें यहाँ पर सेविंग, तो सेविंग हमारी होगी स्मॉल एस इंटू वाई, 10% ऑफ 200, 10% मीन्स 10 अपॉन 100 इंटू
200, तो ये हमारा बन जाएगा 20। ऐसे हम इसको बोल रहे हैं, ये है सेविंग प्रपोर्शन, कि कितने % हम सेव करते हैं। क्योंकि जितनी हम सेविंग करेंगे, अगर हम इक्विलिब्रियम बनाएं S इक्वल्स टू I जैसे होता है, तो उतनी ही हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। इसलिए हमने लिखा यहाँ पर कि जितनी हमारी सेविंग होगी इनकम में से, उतना ही होगा हमारा नेट इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम। क्योंकि सेविंग जो होगी वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, और वो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो सेविंग के बराबर होगा। और सेविंग फंक्शन हमारा ये है, और जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो हमारा होगा कैपिटल स्टॉक में एडिशन, जिसको हम लिख रहे हैं K डैश। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। सपोज दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन। जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल एंड लेबर के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। पुट इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। अगर हम y की जगह पर ये पुट करें तो K डैश क्या बन जाएगा? y की S तो है ही है, तो y की जगह हमने ये लिख दिया। इसको अगर हम दोबारा लिखें, देखो जो हमारा K डैश है, दिस इज स्मॉल s इंटू वाई, ओके। और जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो हम इस y को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ, दिस y। इस y की जगह पर हम लिखेंगे ये सब, बिकॉज y जो है y इज इक्वल टू दिस। तो ये K डैश क्या बन जाएगा? K डैश बन जाएगा S, जो हमने यहाँ बनाया ये बन जाएगा K डैश S, यही, और y की जगह ये सब, फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, ये बन गया। Now the demand side, this was the supply side. Demand side क्या है? Demand side is LT, this is supply side. Demand side is LT equals to L0 e raised to power NT. What is this? LT is the number of workers employed in period T. तो किसी भी पीरियड में हम कितने लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो उस पीरियड में लेबर है LT। T मतलब टाइम पीरियड। जैसे सपोज हम ईयर लगाएं 2000, तो 2000 ईयर में कितनी लेबर को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं? तो ये 2000 जो है ये है करंट ईयर T पीरियड। अगर हम T+1 करें, ये इट मीन्स 2001। अगर हम T-1 करें, इट मीन्स 1999 ईयर। तो ऐसे हम पीरियड को डिफाइन करते हैं। T का मतलब होता है कभी भी करंट पीरियड। तो उससे नेक्स्ट लिखना है तो +1 करके लिख सकते हैं, उससे पहले वाला साल लिखना है तो -1 करके लिख सकते हैं। तो अभी हम करंट पीरियड की बात कर रहे हैं। जिस पीरियड में हम लेबर की डिमांड करेंगे वो उस पीरियड की बात है, ये करंट पीरियड की। नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन पीरियड T, तो हम इस पीरियड में कितने लेबर्स की डिमांड कर रहे हैं, वो कितनी होगी सोलो के अकॉर्डिंग, वो ये होगी L0
e raised to power nt. L0 means number of workers employed in initial period. Initial period means this one. जैसे हम देखें टी पीरियड में हम सपोज लेबर की डिमांड कर रहे थे, अब कर रहे हैं सपोज 120। इनिशियल पीरियड में सपोज हम लेबर की डिमांड कर रहे थे 100। तो L0 है इनिशियल पीरियड, जिसको हम L0 से लिख रहे हैं, और यहाँ पर हम LT से लिख रहे हैं करंट को। करंट पीरियड जो है वो है हमारा LT, जो इनिशियल पीरियड है वो हमारा है L0। जैसे हम इंडेक्स नंबर में भी लिख सकते देते हैं P1 P0। तो P1 होता है करंट पीरियड, P0 होता है बेस पीरियड, प्रीवियस पीरियड। तो प्रीवियस पीरियड हमारा सपोज ये है, जिसके बेस पे हम चेंज देखना चाहते हैं, जिस साल के बेस पे। तो नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इनिशियल पीरियड पहले कितने थे। इनिशियल कोई भी हो सकता है, पहले साल के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो पहला साल है, अगर 5 साल पहले के हिसाब से देख रहे हो फिर ये L0 5 साल पहले की बात है। N इज द ग्रोथ ऑफ लेबर एट अ कांस्टेंट एक्सोजेनस रेट। तो लेबर की ग्रोथ कितनी हुई, ये वो है एक्सोजेनस फंक्शन ये दिया है सोलो ने। दिस इज द डिमांड साइड। अगर हम जैसे यहाँ लिखा राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4, this right hand side implies that labor force expands at the exponential rate n। जो लेबर फोर्स है वो एक्सपैंड होती रहती है फ्रॉम द इनिशियल पीरियड t। तो अगर हम इक्वेशन 4 को, इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 में पुट कर दें, इक्वेशन 3 हमारी ये है, यहाँ l की जगह पुट कर दें, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, k डैश सेम, s सेम, f सेम, k सेम, l की जगह हमने ये फंक्शन लिख दिया। दिस इज द 5th इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर फिल कर दिया। देखो k डैश को s, f, k, l की जगह हमने ये सारी इक्वेशन लिख दी। L0 e raised to power nt। This is 5th equation. Solow regards 5th equation, equation 5, as the basic equation, as it helps in determining the volume of capital stock needed to provide employment to labor, available labor। तो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि अगर हम सारी लेबर की जो ग्रोथ रेट है, जितनी नेचुरल ग्रोथ रेट लेबर की हो रही है, उतनी सारी को अगर हमने एम्प्लॉयमेंट देनी हो तो हमें कितना इन्वेस्टमेंट और करना होगा, कैपिटल स्टॉक हमारा कितना इंक्रीज होना चाहिए, के डैश कितना होना चाहिए, ताकि स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम बना रहे। तो ये इक्वेशंस की फाइनल इक्वेशन है, जिसको हमने डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। One side we are taking capital labor ratio, capital upon labor. This is the capital labor ratio. Capital hyphen labor ratio, capital upon labor. And on vertical axis we are taking output per head and saving per head. This side it is output and saving.
Now this is suppose our output function because of the law of diminishing marginal productivity. तो डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बेस पे हमने डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बेस पे हमने ये बनाया है आउटपुट फंक्शन, जो हमारा कॉमन फंक्शन होता है इकोनॉमिक्स में. आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशो. सपोज इट इज 1. कैपिटल लेबर रेशो हमने कितनी लगाई, उस हिसाब से हमें कितना आउटपुट मिला. सपोज ये वो फंक्शन है जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स के बेस पे दिया हुआ है. एंड जो हमारा सेविंग फंक्शन है, सेविंग कर्व है, सपोज दिस इज आवर सेविंग फंक्शन. ये हमारा फंक्शन है कैपिटल लेबर रेशो के ऊपर डिपेंड करता है 1. इसी के बेस पे हमने इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जितनी सेविंग है उतना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. एंड जो ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स है वो सपोज है ये लाइन. इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाएं, सपोज दिस वन, दिस इज सपोज द एंड पॉइंट. एन कर्व शोज द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर. ये लेबर की ग्रोथ रेट है. This curve, growth rate of labor, this intersects at this point. Suppose E point. E point पर ये इंटरसेक्ट करती है सेविंग फंक्शन को. सेविंग फंक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट फंक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर हमने ये बराबर रखना है. तो ये पॉइंट जो है ये स्टेडी स्टेट ग्रोथ का पॉइंट है. तो इसमें हम क्या बताते हैं, यहां पर क्या है, इस पॉइंट पे हम देखें, अगर हम इसकी हाइट देखें, जितनी लेबर फोर्स की ग्रोथ है, जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई थी कि लेबर फोर्स की ग्रोथ के हिसाब से कैपिटल स्टॉक कितना एक्सपेंड होना चाहिए. यहां पर अगर हम देखें हाइट, तो लेबर फोर्स की जो ग्रोथ है वो इतनी है, इतनी ही कैपिटल सेविंग की ग्रोथ है जिसको हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो जितनी लेबर फोर्स की ग्रोथ है उतनी ही सेविंग फंक्शन की ग्रोथ है. इट मीन्स उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा जितना सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए चाहिए. तो इस पॉइंट पे जिस रेट पे हमारा सेविंग फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसी रेट पे हमारा लेबर फोर्स ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है. और आप ये कह सकते हैं कि पूरी लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए यहाँ पर उतना कैपिटल स्टॉक अवेलेबल है. तो इसलिए हम इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ द स्टेडी स्टेट ग्रोथ. दिस इज सपोज K upon L 1 point and the output here is this. तो आउटपुट हमें इतना मिलेगा. दिस इज द Solo's equation. The second is Mead's equation given by Mead. Mead is of the view that production does not depend on labor and capital alone. थोड़ा सा डिफरेंस आ गया सोलो से. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. तो साथ में इन्होंने नेचुरल रिसोर्स को भी ऐड किया है. एंड टेक्निकल प्रोग्रेस, जिसको हम 4 फैक्टर मान लेते हैं. तो 4 फैक्टर इन्होंने यहाँ ले लिए प्रोडक्शन फंक्शन में. कैपिटल लेबर
नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज लैंड जिसको हम बोलते हैं, और टेक्नोलॉजी। इफ एन रिमेन्स कांस्टेंट, अगर एन सेम हो, देन इंक्रीज इन वाई विल डिपेंड अपॉन इंक्रीज इन के, एल एंड टी। तो अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें तो जो आउटपुट इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे हमने 3 ही लिख लिए। चेंज इन आउटपुट क्या होगा? लेबर में चेंज, दिस वन, कैपिटल में चेंज, दिस वन, टेक्नोलॉजी में चेंज, दिस वन। तो इसको अगर हम दोबारा इक्वेशन को समझें, जो मीड की इक्वेशन है वो क्या है? जो आउटपुट है y, दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये है मीड की इक्वेशन। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये दी है, फर्स्ट वन, द फर्स्ट इक्वेशन बाय मीड, दिस वन। Now suppose the natural resources remains constant। अगर हम इसको कांस्टेंट करते तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो बच जाएगा के, एल एंड टी। इट मीन्स आउटपुट में जो भी चेंज आएगी वो इन तीनों में चेंज आने के हिसाब से आ जाएगी। तो कितनी चेंज इनमें आएगी? जो आउटपुट में चेंज है डेल्टा वाई, वो कितनी आएगी? कैपिटल के थ्रू अगर हम देखें तो कितनी हमने कैपिटल बढ़ाई इनटू इस कैपिटल की प्रोडक्टिविटी क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये कैपिटल की वजह से हुआ। कितनी कैपिटल बढ़ाई और उसकी आउटपुट करने की कैपेसिटी क्या है? जैसे सपोज हमने कैपिटल बढ़ाई 100 से 120, ये हमारी कैपिटल कितनी बढ़ी? चेंज इनकी 20। और जो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है वो सपोज है 10%। तो 20 कैपिटल का 10% इंटू 10/100, इट मीन्स 2 आउटपुट बढ़ जाएगा। क्योंकि कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है 10%। दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल सपोज। तो जितनी हमने कैपिटल बढ़ाई उतना आउटपुट नहीं बढ़ेगा, आउटपुट सिर्फ 2 ही बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल की प्रोडक्टिविटी 10% है। तो कितना हमने कैपिटल बढ़ाया, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। ऐसे ही लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है और कितना हमने लेबर बढ़ाया, ये बनेगा हमारा लेबर के बेस पे। कि ऐसे ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेबर हमने कितना बढ़ाया और लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या है। और जो टेक्नोलॉजी चेंज होने से आउटपुट बढ़ेगा वो हम लिख लेते हैं सपोज डेल्टा वाई डैश। टेक्नोलॉजी चेंज होने से जो आउटपुट बढ़ेगा वो सपोज है डेल्टा वाई डैश, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस। तो अगर हम ग्रोथ रेट देखें, कितना इंक्रीज हुआ रेट, ये तो हो गया इनकम में चेंज कितनी आई। जैसे
हम ग्रोथ रेट निकालते हैं, जैसे सपोज इनकम पहले थी, अगर हम यहीं पे लिख लें सपोज इनकम सपोज थी 100, तो चेंज इसमें आई सपोज 20, मतलब ये 120 होगी न्यू वाली। तो कितने परसेंटेज आई? 20%। कैसे निकालेंगे? चेंज ओवर दिस। दोबारा सुनो, जैसे सपोज हमारे पास y है 100, जो न्यू y बनी वो सपोज बनी 120, ठीक है। न्यू y, हम इसको न्यू लिख लेते हैं, चलो, जो न्यू y बनी वो बनी 120। तो इसमें चेंज कितनी आई y में? न्यू माइनस प्रीवियस, दिस इज 20। तो परसेंट चेंज कितनी आई? परसेंट चेंज हम देखेंगे, चेंज कितनी आई, पहले क्या था, दैट इज चेंज आई 20, पहले था 100। परसेंट के लिए हम इंटू 100 कर सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 20%। तो ये 20 जो हुआ वो पहले का 20% बढ़ गया। तो ऐसे ही हमने कैसे देखा है कि चेंज जो है उसको पहले से डिवाइड कर दो, चेंज इन वाई को वाई से डिवाइड कर दो। तो ऐसे ही हम जब यहाँ पर चेंज देखेंगे तो हम क्या करेंगे, रेट देखने के लिए जो आउटपुट में चेंज आई उसको हम पहले जो वाई थी उससे डिवाइड कर दिया। ऐसे ही जो कैपिटल की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, ये हमने जो लिखा MPK, कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, कितनी कैपिटल हमने लगाई, तो ये आउटपुट में चेंज आई कैपिटल की वजह से। तो आउटपुट में कैपिटल की वजह से जो इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमने मान लो जैसे हमने देखा यहाँ पर कि हमने 20 कैपिटल लगाई, 10% उसकी प्रोडक्टिविटी है, तो आउटपुट बढ़ गया। तो टोटल आउटपुट 100 में से 2 बढ़ गया, जहाँ पे 2% कैपिटल की वजह से हुआ। तो सारे को अगर हम लिखेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे जितनी कैपिटल बढ़ाई थी 2, क्लियर। और इसको हम डेल्टा K अपॉन K, ये मतलब कैपिटल हमने कितनी चेंज की। तो जैसे हमने इसको, मैं आपको दोबारा अगर समझाऊं इस पोर्शन को, सिर्फ इस पोर्शन को ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल, तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है MPK इंटू डेल्टा K ओवर Y, ये लिखा हुआ है। ये K के तो कट जाएंगे, तो यही बचा यहाँ पर। चेंज इन K हमारा क्या है? चेंज इन K हमारा है 20। प्रोडक्टिविटी क्या है कैपिटल की? 10%। 20% ऑफ 20 कितना आया? 2। तो Y कितना है हमारा? 100 था पहले। तो जैसे हमने रेट देखना था, तो कैपिटल के वजह से आउटपुट कितना बढ़ा? 2। टोटल आउटपुट कितना था पहले? 100। तो ये 2% बढ़ा, 2% कैपिटल की वजह से बढ़ा। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये K से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर K से ही डिवाइड कर दिया, तो ये फर्क तो पड़ेगा नहीं कोई। बट इसको लिखा क्यों हमने ऐसे? हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारा कैपिटल के आउटपुट का रेट आ गया टोटल आउटपुट में से। टोटल आउटपुट में से कैपिटल की वजह से आउटपुट कितना बढ़ा, और ये हमारी कैपिटल की रेट आ गई कि हमने पहले कैपिटल कितनी थी और कितनी चेंज की। जैसे हमने ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट निकाला, ये हमारा हो गया ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। सिमिलर तरीके से हम इस लेबर को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं MPL इंटू L ओवर Y इंटू डेल्टा L ओवर L। ये हमारा हो गया इस लेबर की वजह से जो चेंज आया, ये हमारा था जो कैपिटल की वजह से चेंज आया। और ये आउटपुट की जो ग्रोथ है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे डाल के
डेल्टा वाई डैश अपॉन वाई, ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो चेंज आया। तो ये हमारा आउटपुट हो गया, फाइनल इक्वेशन हो गई ये। तो यहाँ पर इन्होंने इसके नाम भी दिए हुए हैं सभी के। ये जो हमारी इक्वेशन बनी, इसका क्या नाम है, इसका क्या, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, फोर्थ का क्या है, ये हम समझते हैं। दिस इज y upon delta y upon y. This is the proportionate growth rate of output. Suppose it is small y, जो हमने यूज़ की है इस नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। इसकी जगह पर हमने सपोज लिया है स्मॉल y. दिस इज द प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट इन आउटपुट। अब ये जो है एम पी के इंटू के अपॉन वाई, एम पी एल अपॉन एल इंटू वाई, these are the proportionate marginal products. proportionate हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि y से proportion निकाला। this is the marginal product of capital and labor। तो जैसे 2 निकाला हमने इसके बेस पे, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है कैपिटल का, कैपिटल कितनी बढ़ाई, उस 20 कैपिटल बढ़ाई, तो उसने आउटपुट कितना बढ़ाया, 2। तो दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है, जैसे जितना भी आउटपुट हमें हुआ वो एक तरह से कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट है, जिसको हम लिख देते हैं सपोज पाई के रूप में। इसको हम पाई लिख दिया, और इसको हमने वेज के रूप में लिख दिया क्योंकि ये लेबर की प्राइस होगी, जितना मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर की कंट्रीब्यूशन है। इसको हमने सपोज लिख दिया डब्ल्यू के रूप में। तो इसको हमने पाई लिखा है, इसको हमने डब्ल्यू लिखा है। एंड ये जो रेशो है डेल्टा के अपॉन के, दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। कैपिटल की जो ग्रोथ रेट है उसको हमने सपोज लिख दिया स्मॉल के के साथ, लेबर की जो ग्रोथ रेट है उसको हमने सपोज लिख दिया स्मॉल एल के साथ। दिस इज प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। एंड ये जो है टेक्नोलॉजी की वजह से जो है, दिस इज सपोज टी। प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, जो टेक्निकल प्रोग्रेस का ग्रोथ रेट है, वो चीज़ जो आउटपुट टेक्निकल ग्रोथ की वजह से बढ़ा। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ मीड। ये मीड की फाइनल इक्वेशन है। ये जो हमने बनाई है, y इक्वल्स टू पाई के डब्ल्यू एल, पाई के डब्ल्यू एल प्लस टी। We know that the true index of economic growth is the growth rate of real per capita income। तो जो ग्रोथ रेट होती है वो होती है रियल पर कैपिटा इनकम। इसी को हम ट्रू इंडेक्स बोलते हैं, रियल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ को। ये हमने पर कैपिटा इनकम वाली वीडियो में भी समझाया हुआ है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग हमने बताया है। तो मैं यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ कि रियल पर कैपिटा इनकम के बेस पे हम कैसे कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो सही है।
देखो, नो सपोज हम कोई यहाँ पे लिखते हैं ईयर, अगर हम लिखें 2005, इसमें जो आउटपुट हुआ, सपोज वो आउटपुट हुआ 100, और इस आउटपुट की जो प्राइस थी वो प्राइस सपोज थी 10। तो अगर हम नेशनल इनकम देखें, दैट इज द प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो वो बन जाएगा 1000। अगर हम 2010 में देखें, आफ्टर 5 years, आउटपुट सपोज हो गया 200, प्राइस होगी सपोज 20, तो ये बन गया 4000। तो अब क्या है, इसको कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। दोनों को, करंट प्राइस मीन्स जिस साल का आउटपुट है उसी साल की प्राइस के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। तो जिस साल का आउटपुट है उसी साल की प्राइस के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। दिस इज द नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 times आउटपुट ग्रो हो गया। और अगर हम इसकी परसेंट निकालें कि कितने परसेंट ग्रोथ हो गई, इसको हम जैसे 4000 हुआ, पहले था 1000, तो 3000 बढ़ गया, पहले था 1000 इंटू 100। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 300% आउटपुट बढ़ गया, ग्रोथ होगी, इतना आउटपुट बढ़ गया। मतलब 4 times लगा लो, अब 4 times आउटपुट बढ़ गया पहले से। बट ये इकॉनमी 4 times ग्रो नहीं हुई। तो यहाँ पे हम ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहते कि इकॉनमी 4 times ग्रो हो गई, ये 4 times ग्रो नहीं हुआ। तो अगर हमने, क्योंकि इसमें मनी इंक्रीज भी है, तो ये मॉनेटरी इंक्रीज है बीच में। तो अगर हमने रियल इंक्रीज देखना हो, रियल इंक्रीज हम कैसे देखेंगे? रियल इंक्रीज देखने के लिए जो 2010 का आउटपुट है 200, अगर हम उसको पिछली प्राइस के साथ ही मल्टीप्लाई करें, 10 प्राइस के साथ ही मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 200 इंटू 10, 2000। तो इसको हम कहेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइस पे ये इंक्रीज हुआ। तो एक्चुअली इकॉनमी रियल टर्म में जो इंक्रीज हुई वो 4 times नहीं हुई, 1000 से 4000 नहीं हुई, 1000 से 2000 ही हुई, मतलब 2 times। तो ये 4 times नहीं हुआ, 2 times ही हुआ। दिस इज द मॉनेटरी इंक्रीज इन नेशनल इनकम, दिस इज द रियल इंक्रीज इन नेशनल इनकम, दिस इज नॉमिनल इंक्रीज, दिस इज रियल इंक्रीज। तो जब हम कांस्टेंट प्राइस के ऊपर चेक करते हैं फिर हमें पता चलता है रियल इंक्रीज। तो ये 4 times नहीं है, रियल इंक्रीज 2 times ही है, बाकी 2 times तो प्राइस बढ़ी थी।
तो अगर हम इसको ऐसी परसेंट निकालना चाहें तो 1000 से जो बढ़ के हो गया 2000, 2000 माइनस 1000, कितनी चेंज आई 1000 की, कितने में से आई, पहले था 1000 इंटू 100, अगर हम करेंगे तो ये क्या आएगा 100%। मतलब ये 300% नहीं बढ़ा, 100% ही बढ़ा रियल सेंस में। बट ये ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ है जिसमें पॉपुलेशन को हमने नहीं लगाया। तो अगर हम पॉपुलेशन को साथ में ऐड करें फिर क्या होगा, देखो जो हमारी पॉपुलेशन है, अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से चलें, 2005 में हमारा जो आउटपुट था वो था 100, यही एग्जांपल, प्राइस थी 10 और नेशनल इनकम हमारी बन रही थी 1000। अब यहाँ पर हम एक और पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं टू कैलकुलेट this is year, this is output, this is price, this is national income। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं पॉपुलेशन। इन 2000 सपोज पॉपुलेशन जो थी, सपोज पॉपुलेशन थी 50, तो यहाँ पर हम निकालेंगे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होती है नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन। दिस इज 20। और अगर हम 2010 में देखें, आउटपुट हमारा है 200, प्राइस हम लगाएं पुरानी, तो ये हमारी नेशनल इनकम बन गई 2000, जिसको हमने देखा रियल इंक्रीज। बट हमारी पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई सपोज 50 टू 75। अब जो पर कैपिटा इनकम आएगी 2000 अपॉन 75, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें this is 80 upon 3, upon 3, 3 to the 6, 60, it means 20, 26.6, or you can say approximately 27। तो जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम हमारी, दिस इज द रियल इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, 20 से 27 बढ़ी। तो अगर हम इसको परसेंट इंक्रीज देखें पर कैपिटा इनकम में, तो जो परसेंट इंक्रीज हुआ तो परसेंट इंक्रीज कितना हुआ 7/20 इंटू 100। 27 माइनस 27/20 इंटू 100, तो ये हमारा आया 35%। It means the real per capita growth rate of income
is not 100%, it is 35%. तो जिस ग्रोथ रेट को हम बाई मिस्टेक 300% मान रहे थे, अगर हम उसमें नॉमिनल इंक्रीज ख़त्म कर दें तो वो 100% ही रह गई, और अगर हम उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ भी निकाल दें तो वो 35% ही है। तो ये है रियल इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, दैट इज 35%। असल ग्रोथ रेट ये है। थ्री 300% या 100% नहीं है, ये है 35%। दिस इज द पॉइंट। The true index of economic growth is the growth rate of real per capita income. Real per capita. For example, if growth rate of income is 10%, income grows 10% ho, and population grows 4% ho, then growth rate of real per capita income will be only 6%, not 10%. Thus, to find growth rate of real per capita income, subtract L from both sides of equation 4. तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए क्या किया, यहाँ से लेबर की ग्रोथ रेट को माइनस कर दिया दोनों साइड से, वाई माइनस एल, और यहाँ से भी कर दिया राइट साइड से। राइट साइड से माइनस एल यहाँ लिख लो तो एल के साथ ही लिख लिया, पाई के प्लस एल के साथ हमने माइनस कर दिया प्लस टी, क्योंकि ये इस एल को हमें राइट एंड पे भी लिख सकते थे तो एल के साथ लिख लिया। तो y माइनस एल आर दिस इज, यहाँ से l कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 माइनस w प्लस टी। तो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं। ये थी हमारी इक्वेशन y इक्वल्स टू पाई के प्लस WL प्लस टी। अब इसमें से हमने बोथ साइड L माइनस किया, y माइनस एल पाई के प्लस WL माइनस एल हमने यहाँ लिख लिया प्लस टी। तो दिस इज y माइनस एल पाई के, तो यहाँ से हमने L कॉमन निकाला, सॉरी दिस इज y माइनस एल इक्वल्स टू पाई के, ये माइनस एल कॉमन निकाला माइनस एल, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया 1 माइनस एल की जगह पे, और यहाँ पे माइनस डब्ल्यू, क्योंकि ये माइनस एल को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एल बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस एल डब्ल्यू बन जाएगा, प्लस एल डब्ल्यू और डब्ल्यू एल प्लस टी। तो what is the meaning of this equation? This equation shows that real growth rate of per capita income is positively related with growth rate of this and this. इसके साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, और लेबर की ग्रोथ रेट के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि ये नेगेटिव है। इट मीन्स कैपिटल स्टॉक ग्रो होगा, टेक्नोलॉजी ग्रो होगी तो आउटपुट बढ़ेगा, लेबर फोर्स ग्रो होगी, लेबर ग्रो होगी, पॉपुलेशन ग्रो होगी तो ये कम होगा आउटपुट की ग्रोथ रेट। इसको हमने फिर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। टू वॉच दिस एक्सप्लेनेशन डायग्रामेटिकली एंड फॉर द optimism and criticism of this
model must watch the second part of this video. Thank you.